بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی القاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے اور سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ ایک بہت خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ولاگ میں تذکرہ کروں گا حالیہ ایران امریکہ جنگ اور اس جنگ میں خاص طور پر ایران کی پرفارمنس پر۔ جنگ کے آغاز سے جنگ کے اختتام تک کی سمری بھی آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کل جنگ ختم ہوئی ہے، سیز فائر ہے۔ اس سیز فائر میں پاکستان کا کیا کردار تھا، اس پر بھی بات کروں گا۔ جنگ ایران میں تھی لیکن درد یا مروڑ پاکستان میں تھے، اس پر بھی بات کروں گا، ایسا کیوں تھا۔ پھر جنگ فی الحال رکی ہے، یہ رکی کیسے ہے۔ امریکہ نے جو 15 نکاتی آرڈر نامہ جاری کیا تھا ایران کی قیادت کے لیے، اس کے جواب میں ایران نے اپنا 10 نکاتی پوائنٹس پر مشتمل 10 پوائنٹ پر مشتمل شرائط امریکہ کے حوالے کی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کیونکہ ایران نے جو 10 پوائنٹس رکھے ہیں اس حوالے سے میڈیا نے شاید کوریج نہیں دی، پاکستانی میڈیا نے تو بالکل ہی نہیں بتایا۔ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے جو 10 شرائط رکھی ہیں وہ کیا ہیں۔ امریکہ کی شرائط کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، نہ کوئی کھڈا نہ کوئی جمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ خاص ولاگ ہے، میرے ساتھ جمے رہیے گا، اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس ولاگ میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو شاید پاکستان کے تو کسی یوٹیوبر نے ابھی تک نہیں بتائیں۔ جی میرے دوستو، ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا تو پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی، پاکستانی بھی یہ سمجھ رہے تھے، پاکستان کے میرے ڈھول سپاہی بھی یہی سمجھ رہے تھے، پاکستان کے حکمران بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ تو کوئی جنگ ہے ہی نہیں، اور دنیا بھر میں یہ کہ جنگ کیا ہے کہ 2-3 دنوں میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ جنگ کا جب آغاز ہوا تو پہلے 1-2 دنوں میں ایسا ہی نظر آیا۔ ایران کی تمام اعلیٰ فوجی قیادت، علی خامنئی ان کے سپریم لیڈر اور باقی بھی ان کے بہت بڑے تھنک ٹینکس، کچھ اچھے ان کے سائنسدان تک اس جنگ میں کام آئے، شہید ہوئے۔ اس سے اور بھی یہ تاثر پیدا ہوا کہ بھئی یہ جنگ تو بالکل یک طرفہ جنگ ہے، ون سائیڈڈ گیم ہے، کہاں امریکہ اسرائیل کہاں ایران۔ لیکن پھر ایران نے جب رسپونڈ کرنا شروع کیا تو میری بھی آنکھیں کھلیں، اور دنیا میں خود اپنی اگر حوالے سے بات کروں تو آپ یقین کیجئے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس قدر اتنا تگڑا جواب دے گا۔ ایرانی قوم تیری عظمت کو سلام۔ علی خامنئی شہید ہو گیا، میں کہتا ہوں اس کی عظمت کو سلام۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اور اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے 40 دن تک۔ اس سے پہلے ماضی میں ذرا پاکستان سے موازنہ کرتا ہوں، پاکستان نے بھی جنگیں لڑی، انڈیا کے ساتھ لڑی۔ ایک جنگ تو پچھلے سال لڑی، تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی جنگ تھی۔ جنگ شروع کیسے ہوئی، ختم کیسے ہوئی، کسی کو نہیں پتا۔ فکس میچ تھا یا کیا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ جنگ ختم ہوئی تو شروع کیوں ہوئی اور ختم ہوئی تو کن شرائط پر، کسی پاکستانی کو نہیں پتا۔ امریکہ سے ایک حکم نامہ آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 منٹ کی کال عاصم منیر کو، 2 منٹ کی کال شہباز شریف کو، 2 منٹ کی کال نریندر مودی کو، فوراً جنگ روک دو۔ جنگ روک گئی۔ اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ جنگ کیوں کی گئی، حملہ کیوں ہوا، کن شرائط پر۔ آئندہ دیکھیں، جنگ شروع ہوتی ہے، 2 فریق لڑتے ہیں تو ان کی لڑائی ختم ہونے کے لیے کچھ شرائط تو ہوتی ہیں، معاہدہ طے پاتا ہے، ایک جرگہ ہوتا ہے، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، دنیا کا نظام ویسے ہی چلتا ہے۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کی یہ انوکھی جنگ تھی، جس حوالے سے مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2-3 بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان میں ایک تو کارگل کی وار تھی۔ اس جنگ کا بھی کیسے شروع ہوئی، کیسے بڑی تعداد میں پاکستان کے 8,000 ہمارے بچے شہید ہو گئے اس جنگ میں، پاکستانی فوجی۔
और उस जंग में हमारे हाथ से कारगिल गया, उससे पहले सियाचिन गया। तो इन जंगों क्यों शुरू हुई, क्यों ख़त्म, कोई पता नहीं है। मुआहदा हुआ कैसे हुआ, इस कोई भी नहीं जानता। पाकिस्तान की क्या शराइत थी, इंडिया की क्या शराइत थी, कोई पता नहीं है। 65 की वार हुई तो उसके बाद, या 71 की वार हुई, बाकायदा मुआहदे हुए। और वो मुआहदे क्या थे? मुआहदा ताशकंद था और उसके बाद शिमला अकॉर्ड था। उसकी कुछ कुछ उसकी खबरें निकली, लेकिन वो भी मुकम्मल किसी को पता नहीं है कि मुआहदा ताशकंद था क्या। मुआहदा ताशकंद ये था कि अयूब खान का दौर वहाँ ख़त्म होता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल पार्टी बनती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह कहकर पीपल पार्टी बनाई थी, आगाज़ किया था कि मैं मुआहदा ताशकंद के राज पाकिस्तान के अवाम को बताऊँगा। उसके बाद 10 साल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो 11 साल तक ज़िंदा रहा, लेकिन मुआहदा ताशकंद के राज अपने दिल में ही लेकर दुनिया को से चला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी नारा तो लगाया, लेकिन मुआहदा ताशकंद के राज कभी किसी को बताए नहीं, और ना हम आज भी जानते हैं। यह है पाकिस्तान की जंगें। अब ईरान ने जो जंग लड़ी है, एक बात तो यह है कि ईरान इतनी बहादुरी से लड़ा है कि उसकी अजमत को मैंने सलूट किया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने कुछ ऐसे इकदाम इस जंग में किए हैं जो कि कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ना कोई खड्डा ना कोई जंप ऑर्डर देता है, और पूरी दुनिया के ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क उसके आगे सरबसुजूद हो जाते हैं। हालांकि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे सरबसुजूद नहीं होता, किसी के आगे अल्लाह के अलावा मुसलमान नहीं झुकता। लेकिन इस्लामी दुनिया के हुक्मरान, हमारे अरब हुक्मरान और हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल्स, पाकिस्तान के ढोल सपाई, ए करनैल नहीं, ए जरनैल नहीं, ए पुत्र जड़े हटाते विकदे नहीं, पता नहीं है हटाते विकदे ने या हटाते नहीं विकदे। अच्छा, मुझे पंजाबी उतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं माजरत करूँगा अगर कोई लफ्ज़ों का मुझसे हेर फेर हो जाए। तो ये जंग भी अमेरिका बहादुर का जो ऑर्डर है इन्होंने ओबे करना है, बाकी क्या था। वरना ये जंग जब शुरू हुई थी तो इस्लामी दुनिया को कम से कम नेबर कंट्रीज को खुल के ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक इराक और एक यमन के भी हौसी हुक्मरान नहीं, यमन के हुक्मरान ईरान के साथ खड़े नहीं थे, हुक्मरान तो सऊदी अरब के साथ खड़े थे। यमन के हौसी जो थे वो ईरान के साथ थे। लुबनान में हिजबुल्ला ईरान के साथ थे, और सबसे बड़ी फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की दुआएं ईरान के साथ थीं। इसके अलावा दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क, तगड़े मुल्क, ताकत रखने वाले मुल्क अमेरिका के कदमों में जी हजूरियाँ करते रहे, बल्कि इवन के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देते रहे, नोबेल इनाम को अमन का पैगंबर कहते रहे, और ईरान के हमायत में कोई भी नहीं बोला। जंग शुरू हुई तो ईरान ने जहाँ से उस पर हमले हुए वहाँ हमले भी किए, और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा इस जंग का मेरे ख्याल में जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने ईरान ने बहिरा हरमुज़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, बहिरा हरमुज़ बंद कर दी। आज भी बहिरा हरमुज़ पर ये सब झूठ कह रहे हैं, मुकम्मल ईरान का कंट्रोल है, मुकम्मल ईरान का कंट्रोल है। कोशिश की छुड़ाएं, लेकिन बहिरा हरमुज़ पर आप ज़रा गूगल अर्थ खोलें तो आपको समझ आएगी कि बहिरा हरमुज़ पर एक तरफ ओमान है, और ओमान का वो एरिया आता है जो बहिरा ईरान के सामने आता है। 6-7 किलोमीटर का वो एरिया है जिससे जहाज, तो जो डीप सी वहाँ पर है वो ईरान को टच करके गुजरता है, लंबा इलाका है। उस सारे इलाके पर ईरान के मिसाइल हैं, और वहाँ से कोई चिड़िया भी नहीं गुजर सकती ईरान से बचकर, ईरान की मर्जी के खिलाफ। उन्होंने सोचा कि हम इस सारे एरिया पर उन्होंने की भी बमबारी की, शदीद बमबारियाँ की, लेकिन ईरान की ताकत को नहीं। ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है, सिर्फ ये बंदर अब्बास का इलाका और बहिरा हरमुज़ के दाएं बाएं का जो इलाका है उस पर से भी ईरान के कंट्रोल को अमेरिका और इजराइल नहीं कमज़ोर कर सके। हकीकत यही है। अब
जब इन्होंने देखा कि ये तो उल्टा पड़ गया, ना उनकी मर्जी से रजीम चेंज हुआ, ना ईरान के अवाम, उनकी सोच ये थी कि ईरान के अवाम शहंशाह ईरान को ले आएंगे, ईरान के अवाम निकलेंगे और ईरान में हमारी मर्जी के हमारी खटपुतलियाँ आ जाएंगी। मैं कहता हूँ ईरान की क़यादत को भी मेरा सलाम। इतने इस्तेहकाम और इतनी बहादुरी, इसकी दुनिया की तारीख, इसमें देखें ईरान को तो आप समझ ही कुछ नहीं रहे थे। दुनिया की बड़ी ताकतों की भी यह हिम्मत नहीं होती कि अमेरिका के खिलाफ उठ के ऐसे करें, और ईरान ने किया और करके दिखाया। और पूरी दुनिया की ईरान ने, एक तो बात यह है कि पूरी दुनिया से अमेरिका का खौफ का जो बुत था वो ईरान ने तोड़ दिया है। और दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी ये महसूस होने लगा है भाई कि अगर ईरानी लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका की सुपरमेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जो ख़ास बात मैं करने लगा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के इस जंग में क्या मफाद है ईरानियों के हवाले से, तो मैंने उसके बाद मैं आपको वो 10 पॉइंट बताऊंगा जो ईरान की कंडीशन थी कि अगर जंग ख़त्म करनी है तो शराइत हमारी चलेंगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ईरान, हमारे वहाँ तो ये हिम्मत ही नहीं होती, हमारे किसी लीडर में ये हिम्मत कभी हुई ही नहीं कि वो अमेरिका को, क्या अल्लाह अकबर, अमेरिका को कहने की आप क्या समझते हैं, हमारे किसी लीडर, किसी फील्ड मार्शल की कभी हिम्मत हुई है कि अमेरिका के आगे हम शराइत रखें। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका ने हुक्म दिया कि तुम हमारे साथ हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो इन्होंने बिल्कुल कहा हुजूर हम हाज़िर हैं, हम आपके आगे सरबसुजूद हैं, आप आएँ, हमारे अफ़गान भाइयों पर हमले करें, हमारे एयरपोर्ट इस्तेमाल करें। तो हमने तो ये किया। सच यही है मेरे पाकिस्तानियों। अच्छा, सच बोलना काफ़ी मुश्किल काम है, मैं ये मुश्किल काम करता हूँ। सच बोलने के लिए इस मुल्क में जान हथेली पर रखनी पड़ती है, तो मैं जान हथेली पर रख कर ही सच बोलता हूँ। धमकियाँ मिलती हैं, जो होगा तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम तो अल्लाह पर यकीन करने वाले लोग हैं, तो हमें अपने अल्लाह पर यकीन है। बाकी जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है। सच कह कर जियो, सच बोल कर जियो, सच सुन कर जियो। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का रोल क्या बनना था, ये बात तो और भी अलमनाक चीज़ थी। जो रोल पाकिस्तान ने क्या प्ले करना था इस जंग में, अल्लाह अकबर कबीरा। पाकिस्तान मुज़ाकरात का खेल खेलता रहा, और ये मुज़ाकरात का जो खेल पाकिस्तान ने खेला, पाकिस्तान का 1 महीने से पाकिस्तान का कैपिटल इन्होंने बंद कर दिया। जंग अमेरिका की ईरान की आज सुना है खुलेगा, क्योंकि अमेरिका वालों ने आने से इनकार किया है। किया क्यों है, अब मैं आता हूँ और ये पाकिस्तान का रोल इतना मुज़ाहका खेज था। ओ भाई, आप पुरवकार तरीके से, आपसे कोई रिक्वेस्ट करता, अगर 2 बंदे लड़ रहे हैं मुझसे, वो रिक्वेस्ट करें दोनों कि भाई आप हमारी सुलह करा दें, फिर तो मेरा रोल बनता है। अगर वो मुझे मानते ही नहीं, मुझे घास ही नहीं डालते, मैं जाकर उनकी मिन्नतें मुझे नहीं करनी चाहिए। लड़ो मरो, अगर तुम एक दूसरे से सुलह करना चाहते हो, इंसान के पुत्र बनना चाहते हो, तो आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करोगे कि भाई हम सुलह करना चाहते हैं, आप बतौर मुसालियतकार प्लीज़ रोल अदा करें, फिर मुझे रोल अदा करना होगा ना। ये तो कोई बात नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दुनिया में ऐसे ही होता है। वैसे मैं इस बात की, 2 इस्लामी मुसलमान भाई अगर आपस में इख्तलाफ रखते हों, उनकी सुलह कराना अच्छी बात होती है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होगी तो सुलह होगी, वैसे तो नहीं होगी। यहाँ पर जंग भी इस्लामी मुल्कों की नहीं थी, यहाँ पर फ़लस्तीन के मज़लूमों की हमायत में लड़ने वाला ईरान था, और फ़लस्तीन और गज़ा पर जुल्म करने वालों की हमायत में जंग लड़ने वाले अमेरिका और इजराइल थे। ईरान ने अमेरिका या इजराइल पर हमला नहीं किया, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। तो यहाँ तो खुल के ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था हमें, हमने सपोर्ट नहीं किया। बल्कि नज़र ये आया कि हमारे हुक्मरानों ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, आपको पता है कि उसे अमन का नोबल इनाम दो, हमारा फील्ड मार्शल वहाँ जाकर जंग से कुछ दिन पहले वहाँ पर लंच डिनर भी करता रहा।
پھر سعودی عرب کا دورہ، قطر، عمان، UAE، ایک بھگم پھیل ملک میں اس وقت تباہی کے حالات ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بالکل پاکستان نوں تے لگا چھڑ دیتا جے تے خود دوریاں تے نکلے نے تے دورے کرو تے نویں سوٹ پاؤ، نویں جہاز لو تے گھومو پھرو، عیاشیاں کرو، عیاشیاں کرتے رہے۔ امریکہ بادر کو اور اسرائیل کو جب پتہ چل گیا کہ ہم تو یہ جنگ ہار گئے، کوئی بھی ان کا سوچ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جس سوچ کے ساتھ ان کا کوئی بھی مقصد وہ حاصل نہیں کر سکے۔ امریکہ بادر نے پاکستان کے ذریعے سے اور کچھ اور جو تھے، جو امریکہ کے ٹٹو تھے، ان کے ذریعے سے ایران پر پریشر ڈالا کہ ہمیں عزت سے نکلنے دو، ہمارے یہ 15 پوائنٹس ہیں۔ امریکہ نے سمجھا کہ ایرانی شاید ان کے حملوں کے بعد ڈر گئے ہیں، تو ایرانیوں نے جواب یہ دیا پاکستانیوں کو، 10 پوائنٹ بتائے کہ یہ ہیں 10 پوائنٹ، اگر وہ آپ کا آقا ہے، آپ اس کی کرنا چاہتے ہو، فیلڈ مارشل صاحب ہو یا پردھان منتری میاں شریف شہباز، ہماری یہ 10 شرائط ہیں، ہم اپنی شرائط کے ساتھ جنگ ختم کریں گے۔ شروع امریکہ نے کی ہے، بحیرہ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے اور اسے ہم نہیں کھولیں گے۔ پوری دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا تو ایران نے کہا جی ہم نہیں کھولیں گے۔ اب ایران نے جو 10 پوائنٹ دے ہیں آج ابھی تک، اس کے بعد ابھی تو سیز فائر ہے، لیکن ایران نے بالکل واضح طور پر اپنے 10 پوائنٹ دیے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کسی نے نہیں بتایا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا ایران کا جو دیا گیا ہے، وہ پہلا پوائنٹ ہے کمپلیٹ سیزیشن آف دا وار آن عراق، لیبنان، یمن۔ جنگل میں صرف ایران کا نہیں کیا، ایران کے علاوہ کیونکہ عراق اور لیبنان اور یمن نے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا عراق، لیبنان اور یمن پر مکمل سیز فائر ہو، ان پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ دوسرا مطالبہ تھا کمپلیٹ اینڈ پرماننٹ سیزیشن آف دا وار آن ایران ود نو ٹائم لمٹ۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے، مکمل ایران کے خلاف جنگ بند کی جائے۔ تیسرا مطالبہ ایران کا یہ ہے جی، جو انہوں نے تیسری شرط رکھی ہے، ending all conflicts in the region in their entirety۔ تمام دیکھیں اس پورے خطے میں جتنے بھی اختلافاتی چیزیں ہیں ان سب کو اس خطے سے ختم کیا جائے، اس میں ظاہر فلسطین کا مسئلہ بھی ہے۔ چوتھا ایران نے جو پوائنٹ دیا وہ یہ تھا establishing a protocol and the condition to ensure freedom and security of navigation in Strait of Hormuz۔ ایران کو مکمل ہرمز کا کنٹرول چاہیے اور ہے بھی اس کے پاس، تو اس کے حوالے سے ایرانیوں نے کوئی کمپرومائز کرنا ہی ہے نہیں ہے۔ پھر ری اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارمز، یہ بھی ان کا ہے کہ جو بحیرہ ہرمز ہے اس کو وہ ری اوپن، ایرانیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو تکلیف ہے، ہم ری اوپن کریں گے، لیکن پہلے اوپر دی گئی جو شرائط ہیں ان شرائط کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ چھٹی جو شرط ایران نے رکھی تھی بہت ہی زبردست شرط رکھی ہے، کہا ہے جی کہ فل پیمنٹ آف کمپنسیشن فار ریکنسٹرکشن کاسٹ آف ایران۔ اس جنگ کی وجہ سے عراق میں جو انفراسٹرکچر کو امریکی اور اسرائیلی بمباری سے نقصان پہنچا ہے اس کا مکمل پیسہ دیا جائے، اس کا مکمل ایران میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ہمیں پیسہ بھی دیا جائے۔ جنگ بند کرنے کی ایک شرط ایران نے یہ بھی رکھی ہے۔ ساتواں مطالبہ یا ساتویں شرط ایران کی یہ تھی فل کمٹمنٹ ٹو لفٹنگ سینکشن آن ایران۔ ایران پر جو سینکشن لگائی گئی ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ 8واں پوائنٹ ایران نے یہ لکھا ہے ریلیز آف ایرانین فنڈز اینڈ فروزن ایسٹس ہیلڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ شہنشاہ ایران کے زمانے سے 150 ارب ڈالر کے ایرانین اثاثے ہیں جو ان شہنشاہوں نے، جیسے اس ملک سے ہمارے جنرل ہیں وہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے دبئی لے کے جاتے ہیں، جزیرے خریدتے ہیں، ہمارے جج پیسہ چوری کر کے اس ملک سے بھاگتے ہیں، ہمارے کچھ سیاستدان بھی اس ملک سے پیسہ چوری کر کے دبئی وغیرہ میں لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایران کا بھی جو شہنشاہ تھا اس نے ایران کو لوٹا اور ایران سے پیسہ چوری کر کے امریکہ میں بینک بھرے۔ تو ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں امریکہ میں
वो सारे हमें वापस किए जाएं। वो ईरान का पैसा चोरी करके किया है, हमारा कोई हुक्मरान ये अहमद नहीं कर सकता। हमारे हुक्मरान तो हैं ही चोर, यही तो चोरी करके पैसा लेके जाते हैं इंग्लैंड तो वही। अगली शर्त ईरान की ने 9वीं शर्त ये रखी है मेरे दोस्तों, ईरान फुल्ली कमिट्स टू नॉट सीकिंग पोसेशन ऑफ एनी न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने तो पहले ही ये कहा हुआ था अली खamenei साहब ने कि हम न्यूक्लियर को वेपन्स के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम न्यूक्लियर को अपने एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये शर्त उसने कहा जी कि इस हद तक तो ठीक है, हम न्यूक्लियर प्रोसेसिंग करेंगे, हम एटमी प्लांट लगाएंगे, ये बात ठीक है, हम एटमी बम नहीं बनाते, एटम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते। ये बात अमेरिका की चले उन्होंने मान ली, बल्कि उनका तरीका ही यही रहा है, ईरान को इस बात की ये नहीं रही है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, ये उनका मकसद कभी रहा ही नहीं। और अगर ईरान बनाना चाहे तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। अगर अमेरिका, पहली बात यह है कि अगर ये इतना बड़े गुनाह का काम है एटमी हथियार बनाना, तो सबसे पहले अमेरिका ने बनाए क्यों? अमेरिका ने बनाए ही नहीं, इस्तेमाल भी किए। वर्ल्ड वार के दौरान 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर वो ईरान ने जाके बम गिराए थे। ओ भाई, न्यूक्लियर बम बनाने वाला अमेरिका, न्यूक्लियर बम इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क अमेरिका। रशिया के पास 6000 से ज़्यादा एटमी हथियार हैं, अमेरिका के पास 5500 एटमी हथियार हैं, इंग्लैंड के पास 500 हैं, फ्रांस के पास 500 हैं, चाइना के पास 500 हैं, पाकिस्तान के पास भी 200-250 एटमी हथियार, 200 से 250 हैं, इंडिया के पास भी 180 या 200 हैं। सबके पास हैं, सब बंद करें, सब खत्म करें। अगर तुम बना रहे हो, फिर दुनिया का जो मुल्क भी बनाना चाहे उसे आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा चलें, इस बार फिर कभी मैं बात करूंगा तफसील के साथ कि ये एटमी हथियारों की कहानी क्या है, इससे कोई मुल्क कितना महफूज होता है और किसी मुल्क को कितना नुकसान होता है। ये भी एक दिलचस्प कहानी है, वो किसी और व्लॉग में आपकी खिदमत में रखूँगा। 10वां मुतालबा ईरान ने यह किया, शर्त यह रखी कि इमीडिएट सीज फायर टेक इफेक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स इमीडिएटली अपॉन अप्रूवल ऑफ द अबव कंडीशन। उन्होंने कहा कि ऊपर जो शर्तें दी हैं, इन शराइत को लेकर तमाम महाजों पर जंग जहाँ है वहीं पर जंग बंद कर दी जाए। यह था ईरान का मुतालबा। इससे ईरान की ये 10 शराइत थी। ये शराइत अमेरिका की उन 15 हुक्मनामा जो डोनाल्ड ट्रंप का था, ईरान ने फाड़ के वो फेंका है रद्दी की टोकरी में। तो ये होती है खुददारी, ये होती है किसी कौम की लीडरशिप, और लीडर तो ऐसे होते हैं। आलम इस्लाम में कैसे लीडर हैं, इस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपके ख्याल में, अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते, मेरी नज़र में इस वक्त आलम इस्लाम में अगर आप किसी लीडर, किसी मुल्क के, इस्लामी मुल्कों में किसी मुल्क की लीडरशिप को अच्छी लीडरशिप कह सकते हैं, इस्लामी लीडरशिप कह सकते हैं, दैट इज़ ओनली ईरान। और ईरान के अलावा मुझे तो हर तरफ टट्टू नज़र आते हैं, बकाऊ नज़र आते हैं। और सबसे बड़े टट्टू तो मुझे अपने मुल्क में नज़र आते हैं, जिन्होंने हमारी इज़्ज़तों के सौदा किया और हमें दुनिया में बेइज्जत और बेतौकीर करके छोड़ दिया। न सिर्फ हमें, बल्कि अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ करे, इससे इस्लाम का इमेज इन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया। इस्लाम तो गालिब आने के लिए है, मगलूब होने के लिए नहीं। इस्लाम किसी के आगे अल्लाह के अलावा झुकने की इजाज़त नहीं देता। इन्होंने खुद भी अपने सर झुकाए और अपने मुल्क के अवाम को भी झुका दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ सच बोलूँ। मैं शुरू में मैंने ये सोच लिया कि आइंदा मैं हमेशा अपने हर व्लॉग के आगाज़ में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इसका मतलब यह है कि झूठों पर अल्लाह की लानत। मेरे मुल्क में झूठ बोलने वाले यूट्यूबर, मीडिया, अखबार, कलमकार, चतरकार झूठ कह के मेरे मुल्क के नौजवानों की फिक्री तौर पर अपने मुल्क के नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, झूठ पर लानत भेज कर जियो, झूठ से अपने आप को बचा कर जियो, झूठों को पहचान कर जियो। अगर झूठों का, क्योंकि इस मुल्क में झूठ फैलाया जा रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस चैनल का, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔